I'll share the screen now. Can you see the screen? Ma'am, zoom it full. Hmm. चलिए, आवाज बराबर है ना? नेहा, can you hear me? Yes, ma'am. Yes. Okay, I'll start now. Now today I have taken the topic osmotic fragility test. ये भी आपका topic नहीं हुआ था. We'll do osmotic fragility test. What is osmotic fragility test? Introduction. Osmosis means water concentration. What is osmosis? It is water concentration. If any liquid you are having, what is the water concentration? What is the part of the salt in that? That is called osmosis. Now hypotonic solution. There's two type: hypotonic solution and hypertonic solution. What is hypotonic solution? In hypotonic solution, high water content plus low salt. For example, you take glass of water and pinch of salt in that. That is called hypotonic solution. Okay. And hypertonic solution, low water content and high salt. You have taken half cup of water and added a cup of sugar in that. Okay. So that is high water content. That means low water and high salt. ज़्यादा salt डाल दिया आपने उसमें और पानी कम है. Now meet the red cell. We have to see the permeability of the red cell of absorbing the water or absorbing the salt. Now how the red cell seems. What is the morphology of red cells? I'll show you. It is shaped like a flattened bilaterally indented sphere, a biconcave disc. It is a biconcave disc. ऐसा होता है ना, कॉन्वेक्स इसको बोलते हैं जिसमें गड्ढा अंदर होता है, और कॉन्केव इस साइड को बोलते हैं. ठीक है, तो ऐसे बाय कॉन्केव डिस्क मतलब टू कॉन्केव डिस्क, ऐसे जैसे आपको इडली का शेप दिख रहा होगा, बीच में गैप है, दिख रही है ना. तो दिस इज आरबीसी, नॉर्मल मैच्योर एरिथ्रोसाइट एज विजुअलाइज्ड बाय अ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 9.800. ठीक है, दिस इज द शेप ऑफ आरबीसी. In fixed stained blood smear, erythrocyte appears circular with a diameter of about 7 to 8 microns, है ना, micromillimeter, and an area of central pallor. Central pallor मतलब बीच का जो है वो पेल होता है, और चारों तरफ में गोल सर्कुलर आपको दिखता है जब आप स्लाइड देखते हैं. आप लोगों ने देखी होगी स्लाइड्स. Average values of the for the mean cellular volume in normal subjects range from 80 to 100 FL. ठीक है, average value for mean cellular volume in normal subjects range from 80 to 100 FL. High elastic and deformable. High elastic है, इलास्टिसिटी रहती है उसमें, और डिफॉर्मेबल मतलब अपने चेंज भी हो जाता है, वो फॉर्मेशन उसका चेंज हो जाता है. The erythrocytes can pass through a vessel of about 3 micrometers in maximum diameter. ये आरबीसी इतना बारीक होता है ना, 7 to 8 माइक्रॉन्स होते हैं, और इतनी बारीक बारीक जो कैपिलरीज होती हैं आरबी हमारी जो वेन्स होते हैं उसमें से वो बराबर पास हो जाता है. ठीक है. Now what is the function of that hypotonic and hypertonic solution? में क्या होता है देखें. Cells in the body pass in extracellular fluid which is isotonic in nature. जो हमारे सेल्स हैं बॉडी में, आरबीसीज हैं, सेल्स हैं, ये पास होते हैं द बॉडी पाथ में, जो मूव होते हैं वेन्स में, आर्टरीज में, सब में. तो एक्स्ट्रा सेलुलर पाथ इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड विच इज आइसोटोनिक इन नेचर. व्हाट इज आइसोटोनिक? The salt and the water inside the cells is equal to the salt and the water outside the cells. यानी जितना सेल पानी और सॉल्ट अंदर है सेल के अंदर, उतना ही पानी और सॉल्ट जो है वो बाहर भी है सेल के. दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक. आइसोटोनिक मतलब सेम, बैलेंसिंग, inside also and outside. The concentration of water plus salt is equal to outside and inside the cell. That is called isotonic solution. The plasma membrane of the body cells are semi permeable. जो हमारे आरबीसीज होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज सेमी परमिएबल. सेमी परमिएबल मतलब हर कुछ उसके अंदर जा नहीं सकता और हर कुछ उसके अंदर से बाहर आ नहीं सकता. परमिएबिलिटी मींस द एब्जॉर्बेंस पावर ऑफ द सेल, जो उसमें खिंचता है, जो पानी वो एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, दैट इज परमिएबल टू वाटर ओनली. व्हाट इज परमिएबल इनसाइड इट? ओनली वाटर कैन पास थ्रू इट, other things cannot pass through it. The plasma membrane of the body cells are semi permeable, that is permeable to water only, मतलब only water can pass through those cells. ठीक है ना. What is the objective of this test?
The test is used to diagnose the different types of anemias. ये देखने के लिए कि कौन सा टाइप का एनीमिया है in which the physical properties of the RBCs are altered. और ये एनीमिया इसलिए अपन पढ़ चुके हैं, अभी आपको इसके पहले मैंने बताया था मैक्रोसिटिक है, मैक्रोसिटिक एनीमिया है कि हाइपोक्रोमिक एनीमिया है. तो बिकॉज उसमें शेप ऑफ द आरबीसी चेंज होता है. मैक्रोसिटिक में आरबीसी छोटा हो जाता है, मैक्रोसिटिक में आरबीसी बड़ा हो जाता है, हाइपोक्रोमिक में और पेल हो जाता. तो यू नो व्हाट इज द शेप एंड साइज ऑफ द मॉर्फोलॉजी. अगर मॉर्फोलॉजी आरबीसी की बिगड़ गई, सिकल सेल एनीमिया है तो वो आदूज का चांद जैसे हो जाता है, सिकल जिसे घास काटते वैसा हो जाएगा. तो जैसा आरबीसी का शेप साइज होगा उसमें उतना ही कैपेसिटी होगी उसको गेन करने की, वाटर एब्जॉर्ब करने की, सॉल्ट एब्जॉर्ब करने की. So the test is used to diagnose the different types of anemia in which the physical properties of the RBCs are altered. The main factors affecting the osmotic fragility test is the shape of RBC, which in turn is depend on the volume. मैंने आपको बताया पहले कि अगर जो शेप उसका जो हाइपोक्रोमिक है बड़ा शेप है, माइक्रोसिटिक है छोटा है, और सिकल सेल एनीमिया हो गया, दूध के चांद जैसा आरबीसी हो गया, तो उसमें कैपेसिटी नहीं है ब्लड को ज्यादा लेने के लिए और एब्जॉर्ब करने के. तो it depended on the volume of the RBC surface area and the functional state of the RBC membrane. उसकी कैसी functional state है, उसमें कितनी ताकत है, क्या function कर सकता है RBC. Now what is the material and instruments required for this test? Test tube you need for it. Heparinized blood you need, means heparinized blood मतलब जिसमें एंटीकोगुलेंट हिपेरिन ऐड किया होगा वो ब्लड चाहिए. आपको हाइपोटोनिक सोल्यूशन चाहिए, आपको डिस्टिल वाटर वाला जिसमें सॉल्ट कम मात्रा में होता है. अपन ने बताया मैंने अभी आपको पहले. व्हाट इज हाइपोटोनिक? हाइपोटोनिक में पानी ज्यादा और सॉल्ट कम, है ना. एंड हाइपोटोनिक में पानी सॉल्ट ज्यादा और पानी कम. एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन आपको अभी बताया नॉर्मल सलाइन जिसमें दोनों सेम वाला, नॉर्मल सलाइन जिसमें 9 grams ऑफ सॉल्ट होता है और 1000 ml पानी होता है, दैट इज नॉर्मल सलाइन. एंड सेंट्रीफ्यूज मशीन यू नीड. ओके. नाउ व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल नॉर्मल सलाइन? ये 0.9 grams पर परसेंटेज मींस NaCl 9 grams है और 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर है. दिस इज composition of the normal saline. जो नमक होता है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, that is salt what we eat. Now procedure. What is the procedure? Prepare 3 test tubes. Contains distilled water. एक में टेस्ट ट्यूब में distilled water लीजिए, एक में normal saline लीजिए, and एक में hypertonic solution लीजिए. ये नॉर्मल सलाइन इज हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक मतलब आपने 9 ग्राम सॉल्ट लिया और उसमें आपने वो भी डाल दिया, तो आइसोटोनिक या हाइपोटोनिक जो. तो द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हिपरनाइज्ड ब्लड इन ईच ट्यूब. और तीनों ट्यूब में आपको क्या डालना है? एक डिस्टिल वाटर वाले में भी आपको हिपरनाइज्ड ब्लड डालना है फ्यू ड्रॉप्स के, नॉर्मल सलाइन में भी फ्यू ड्रॉप के ब्लड डाल दीजिए, और हाइपोटोनिक में जिसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा मात्रा में है उसमें भी आपको ये डाल दीजिए आप हिपरनाइज्ड ब्लड, मतलब जो एंटीकोगुलेटेड ब्लड है वो आपको उसमें ऐड करना है. मिक्स फॉर फ्यू मिनट्स. उसको मिक्स कर दीजिए मैनुअली और बाय स्टर्नर, या तो आप लकड़ी से उसको डंडी से कांच की जो होती है उससे हिला दीजिए, या फिर मैनुअली आप हिला सकते हैं. पुट द 3 सैंपल्स इन सेंट्रीफ्यूज मशीन. और इन 3 सैंपल्स को आपको सेंट्रीफ्यूज मशीन में ऐड कर देना है. नया कुछ कह रही हो? यस मैम. आप बोलो बेटा. मैम ये जो आपने टेस्ट ट्यूब ली है इसमें ये सारे कंटेंट अलग अलग है या एक में ही है ये सारे? नहीं अलग अलग. डिस्टिल वाटर है, पहले ही बताया ना, हाइपोटोनिक है. टेक 3 बेटा, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स. पहले लाइन देखो ना. Prepare 3 test tube. You have to take 3 test tube. Contain 1 in distilled water, and other test tube you have to take normal saline, and the third test tube you have to take hypotonic solution. ये लिखा तो है ऊपर ही है ना. 3 टेस्ट ट्यूब लेने अलग अलग. एक में आपको डिस्टिल्ड वाटर डालना है, एक में नॉर्मल सलाइन डालना है, एक में हाइपोटोनिक सोल्यूशन डालना है. ठीक है. और फिर उसमें लिखा है ना, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हिपरनाइज्ड ब्लड इन ईच ट्यूब. हर एक ट्यूब में फिर आपको ब्लड डालना है, तीनों में आपको ब्लड ऐड करना है. ठीक है. फिर मिक्स फॉर फ्यू मिनट्स. आइदर आप मिक्स करो उसको स्टरर से, कांच की रॉड से, या फिर मैन्युअली आप मिक्स कर लीजिए उसको. और फिर पुट द 3 सैंपल्स इन सेंट्रीफ्यूज मशीन. क्लियरली इट इज रिटन 3 सैंपल्स यू हैव टू टेक ऑल द 3 बॉटल. दी 3 तीनों को आपको सेंट्रीफ्यूज मशीन में आपको ऐड करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है. एंड व्हाट इज द रिजल्ट? The fluid portion of the hypotonic solution, that is the distilled water वाला जो solution, will colored because the RBC is swelling and finally ruptured and hemoglobin release. और result क्या होगा? जो fluid है, जो RBC है, जो hypotonic solution है आपका,
जिसमें डिस्टल वाटर 1000 था और सॉल्ट केवल 9 ग्राम्स था, दैट इज नॉर्मल सलाइन वाला जो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, उसमें क्या होगा, आरबीसी रप्चर होगा, स्वेल होगा और उसके बाद में रप्चर हो जाएगा। तो पानी कैसा होगा, लाल हो जाएगा, क्योंकि आरबीसी रप्चर हो गए, आरबीसी हिमोलाइज हो जाएंगे तो बाहर आ जाएगा, उसका पूरा रेड हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाएगा। तो वो the fluid portion of the hypotonic solution will colored because the RBC swelling and finally rupture and hemoglobin release. hemoglobin rupture, RBC rupture हो जाएगा तो hemoglobin बाहर आ जाएगा solution में और solution लाल कलर का आपको दिखने लग जाएगा। The fluid portion of the normal saline remain clear. जो normal saline का है उसमें clear रहेगा because the RBC in the normal saline it is condition उसका normal है। The fluid portion of the normal saline remains clear because the RBC remains in the normal condition. उसमें normal condition में रहेंगे। The fluid portion of the hypertonic solution will colored. Hypertonic का भी colored हो जाएगा। The RBC shrink हो जाएंगे क्योंकि इसमें salt ज्यादा है तो RBC क्या हो जाएंगे, shrink हो जाएंगे। पहले वाले में hypotonic में RBC swell हो गए थे, swell यानी सूज जाना और फिर फट गए थे, इसमें shrink हो गए and the finally the plasma membrane destruct and the hemoglobin release. इसमें श्रिंक हो जाएंगे और उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन फट जाएगी और हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाएगा। पहले वाले में स्वेल हो गए थे, फूल गए थे और फिर रप्चर होके फट गए थे। बीच वाले में नॉर्मल सलाइन वाले में एज इट इज थे वो, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो मैंने अभी बताया वही ऑब्जर्वेशन मैंने एक और बार रिपीट कर दिया इसमें कि ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 नॉर्मल सलाइन एंड टेस्ट नंबर 2 ये डिस्टिल्ड वाटर विद एक्ट एज अ कंट्रोल, दैट इज नंबर hemolyzers in the normal saline and complete hemolysis in the distilled water. The test tube in which no hemolysis has occurred, the RBC will settle down and form a dot, red dot mass बन जाता है at the bottom of the tube, leaving the saline above clear. उसमें नीचे hemolyze नहीं होगा तो red dot बन जाएगा और ऊपर का saline clear रह जाएगा. Some hemolyzes the saline tinged red with the hemoglobin with the unruptured cells forming a red dot at the bottom. ठीक है। The test tube with the complete hemolyzed the saline will be equally deep red with no red cells at the bottom of these tubes. ठीक है। तो ये अलग अलग ट्यूब का अलग अलग बताया कि एक में पूरा रप्चर हो जाएगा तो लाल पानी हो जाएगा, एक में नीचे डॉट बन जाएगा। तो ये दोनों तीनों में डिफरेंट, दूसरे में भी डॉट जो हिमोलाइज हो जाएगा, एक में श्रिंक होके हिमोलाइज होता है, एक में स्वेल होके हिमोलाइज होता है। ठीक है। Results, observation and results, express the results in the saline percentage. Saline percentage आपने कितना लिया, hemolysis begin in कितने percent of the saline में वो हुआ, and hemolysis complete in कितने percent of the saline, वो आपको लिखना पड़ेगा उसमें जितने में आपने उसको डाला, जो आपने लिया कितना परसेंटेज आपने सलाइन डाला था। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन, you have to give the measurement and you have to write the result. समझ में आया? Any questions? लास्ट था ये, बताओ, बोलो। दिस इज द टेस्ट फॉर ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी। छोटा ही था ये लेकिन मैंने बोला आपको बता देती हूँ। बोलो किसी को कोई क्वेश्चन है, पूछो। नहीं समझा होगा तो फिर से बता दूंगी लेकिन पूछो। अभी 10 लोग थे, अभी 7 ही लोग बचे आपके। बताओ कहाँ चले गए बच्चे? एग्जाम सामने आ रही है, बच्चों को चिंता ही नहीं है क्लास की। नेहा? यस मैम। समझ में आ गया? हाँ मैम मुझे तो आ गया। एनी क्वेश्चन? रवि, सुहेब? नो मैम। वो शिल्पी? मैम श्रिंक मतलब क्या होता है? श्रिंक यानी सुकड़ जाना। सुकड़ जाना। श्रिंक करना है ना, सुकड़ जाना। स्वेलिंग करना यानी फूल जाना, सूज जाना, बड़ा हो जाना। जैसे आप हम फोम में, पानी में फोम डालते हैं तो हम फोम, पानी पूरा पी लेता है ना, फूल जाता है ऐसे, और उसको श्रिंक कर दोगे तो पूरा पानी उसमें से निकल जाएगा। श्रिंक कर दोगे मतलब दबा दोगे, सुकोड़ दोगे तो पूरा पानी उसमें से निकल जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से आरबीसी जब श्रिंक हो जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, ज्यादा सॉल्ट हो जाता है तो आरबीसी क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। श्रिंक हो जाते हैं तो फिर वो आरबीसी श्रिंक हो गए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और उसमें से हीमोग्लोबिन बाहर हो जाता है तो पानी लाल हो जाता है ना। और पहले वाले में भी, हाइपोटोनिक में भी क्या हुआ, आरबीसी क्या हुए, स्वेल हो गए। स्वेल हो गए यानी फूल गए, पानी ज्यादा पी लिया, और पानी ज्यादा पी लिया और फिर रप्चर हो गया उसका प्लाज्मा, तो फिर उसका पानी रेड आरबीसी का पूरा हीमोग्लोबिन बाहर हो गया, है ना। समझ में आया? ओके
ओके दिस वाज द Yes, टेस्ट ma'am. फॉर ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट था आपका, जो मैंने आपको बता दिया। और किसी को कोई क्वेश्चन है? दीपांशु, तुम अभी एंटर हुए हो?